Good evening. I hope I'm audible. I'm still in the traffic. The Bombay traffic was today just too bad. I could not estimate that I'll reach home in time. But I hope I'm clear and loud. Maybe you can show some emoticons and we can know this. So I'll perhaps get into the speaking mode maybe in 15-20 minutes if I get out of this traffic. AC driver जी on कीजिए, आप भूल गए. हाँ, full कर दीजिए. So let's start off with Mahantesh. What do you think is Nifty, Bank Nifty, and the market is doing over the next 2 weeks? That's what we are discussing. Other people can step in perhaps. Mahantesh, please go ahead. Mahantesh, can you unmute your mic and speak? Go ahead, Himanshu, you speak. Mahantesh, do you wish to speak? Or anybody else would like to speak? I invited Dr. Sagar Chandra. I've invited Himanshu. Sir, I am at office. I can't speak. I want to listen. So if you don't want to speak, why have you taken the mic? Then you're confusing us. So I'm removing you. If you cannot speak, then don't ask for the mic. And I'm inside a very bad traffic. So if there are some few other speakers who will speak for the next 10-15 minutes, I'll then come into a range where there's not so much of honking. It's a very bad traffic jam here. I hope Sridharji will share his views with us. And I've invited him to be a speaker. Anybody else wants to speak? Or what do we do? Can at least few people show an emoticon by which we know if my voice is clear, then I can start talking. That's not a problem. So Shubh, Hello, sir. Shubh Arora. हेलो सर 14,500 कब तक लगता है सर? आपको कब तक आ जाना चाहिए निफ्टी पे? अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए नहीं, अभी स्पीकिंग के लिए टर्न है. यू शेयर योर व्यू फर्स्ट. Very good afternoon, everyone. Shivam, do you want to speak? Yes, I want to speak. The market is not looking good because the valuation is not very good, and I expect the market there is some time-wise correction in market. More than price-wise correction, I don't think there is much more price-wise correction. So maybe market will go 17,000 or 16,500. But there may be some consolidation in 2023. It will not going to be so easy to make money like after COVID. Many of the new commerce had made money so easy. So 2023 and 2024 will not be going to be so easy to make money in the market because the valuation are so high. So we must stay with
some banking and infra. Otherwise, we should not look into the IT and some other sector and some other business which comes from US and Europe, because it is not looking very good in because if the GDP is not increasing in US or Europe, then obviously other sectors will also not grow. Suppose the India GDP is 6%. So GDP is the collection of the whole, manufacturing sector and all everything. So if GDP is increasing with 6% or 7%, then how any company will increase or 30%? So it's not reasonable and not market is not looking so. The valuation wise, it is not looking so good, I think. Shivam, you've repeated this line valuation wise not looking good 10 times. So we'll come back to you later. Let's hear Vishal out. We are not really discussing valuations. The topic of the space today is, will market sing Merry Christmas or Merry Kismat? We are taking about a 15-day view to begin with. लंबी बात बाद में अगर मौका लगेगा तो करेंगे. Anybody has a next 15 days to 1 month view, say view up to the budget. View up to the budget and what are you expecting from the budget, how the market can shape up. ये valuation का गाना सुनने के लिए स्पेस नहीं किया हमने. विशाल, any thoughts? Vishal, I'm requesting you, can you unmute your mic and discuss your opinion, and Shu as well. Sir, I wanna speak. Go ahead, Shu. सर अकॉर्डिंग टू इलियट वेव हमने बी वेव कंप्लीट कर लिया निफ्टी ने, जो कि निफ्टी ने हाई लगाया तो कौन सी बी 18,880 वेव, का. कहाँ से शुरू हुई थी ये बी वेव? सर बी वेव स्टार्ट हुई थी इसमें सर 5 सब वेव्स थी. जो ए बी वेव थी बी सर, कहाँ से पहले जब स्टार्ट हुई 18,100 थी? गया था तो वो कौन से टाइम फ्रेम की बी वेव बता रहे हो? तो मैं तो 15,200 से जो स्टार्ट 16,750 16,750 सर, 16,750 सर. अच्छा चलो ठीक है, आगे बोलो. उसके बाद सर अभी वी वेव खत्म होके सी वेव चालू हो गई है. तो सर उसके हिसाब से जो निफ्टी का टारगेट बनता है सर, वो 14,500 के आसपास का बनता है. चलो. मार्केट बहुत मतलब वीक लग रहा है सर, और हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है सर. अगर आप डेली चार्ट पे कहाँ पे देखोगे बन रहा है हेड एंड शोल्डर? कहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर? निफ्टी के सर निफ्टी आवली में चार्ट कहाँ पे पे, देखिए. कहाँ से कहाँ पे? आवली चार्ट पे सर 16,130 अपना 18,130 से लेके सर 18,880. और आज सर अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो उसका ब्रेकडाउन 18,350 के नीचे कंफर्मेशन आएगा. तो अगर सर कंफर्मेशन आ जाता है तो निफ्टी का टारगेट मतलब 15 से 20 दिन का सर 17,300 17,200 के आसपास का निकल के आ रहा है. और सर बैंक निफ्टी में सर एक डाइवर्जन पैटर्न बन रहा है सर. मतलब ये भी सर अगर 42,880 के नीचे चला जाएगा तो सर एक 1,100-1,100 पॉइंट का और डाउनफॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में भी. बस तो बैंक निफ्टी 1,000-1,200 पॉइंट गिरेगी और निफ्टी 3,000 और निफ्टी 4,000 पॉइंट गिर जाएगी. मैंने ऐसा नहीं बोला सर, मैं सिर्फ 5-7 दिन का व्यू अच्छा, आप लेके बोल टुकड़े रहा हूँ. में बात कर रहे हो, ठीक है. हाँ जी. अगर 42,880 के नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट 40,500 के आसपास का मिलेगा बैंक निफ्टी में. ये कौन भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं? जरा उनको भी रिक्वेस्ट करो कि मुस्कुराहट जो आ रही है तो अपना व्यू शेयर कीजिए. विशाल थे सर. हाँ, मैंने माइक दिया उनको. मैंने नहीं दिया सर माइक. Ankit, you have some opinion, some thoughts? Yes sir, good evening KD जी. सर नेक्स्ट 15 दिन में 18,000 के आजू बाजू दिखता है बाजार. और रही बात फरवरी तक की, तो मकर संक्रांति के लड्डू खा के 16,500 16,800 तक की निफ्टी ऐसा देखा जा सकता है. अब पोजीशन बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा बेरिश बनाना है तो मेटल में हो सकता है थोड़ी रैली कर ले, या आईटी को थोड़ा पॉज रखे, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा अभी हाई मार्जिन में है. मतलब जो बैंक में ऊपर के 3-4 हजार पॉइंट है 40,000 के ऊपर के, वो एक बार कमती करने को मांगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे. तो 40,000 41,000 के आजू बाजू लगे फिर आईटी में एक बड़ा फॉल करे, ऐसा लगता है. और
पहले ट्रोलर पुरुष भी आते थे और कल किसी देवी ने आके ट्रॉन कर लिया तो मतलब हमको डबल कंफर्मेशन हो गया कि अब तो 16,500 के आजू बाजू आना चाहिए नेक्स्ट 2 महीने में। दैट्स ऑल सर। ओके, तो इतना सबका मंदी का व्यू कब से बन गया, क्यों बन गया, क्या कारण हो गया? सर हम तो 18,000 से मंदी में थे, 18,000 से मंदी के सौदे बनाए और सौदे बनाने में 700-800 पॉइंट तो चाहिए ऊपर के, तो अभी तो हमारे सौदे बने हैं। अब उम्मीद है कि 2-3 हजार पॉइंट नीचे के मिल जाए, अच्छी बात है। So what's your view, Mr. Lalit Tiwari? ललित तिवारी जी, so चलिए, I agree with the Elliott wave theorists. My feel is ये जो 15,200 से निफ्टी ओवर स्ट्रेच होती चली गई एक न्यू हाई तक, ये एक इरेगुलर बी वेव पैटर्न है। ये कम से कम अपने ओरिजिन तक यानी 15,200 तक तो जाने का पूरा पोटेंशियल रखती है, पर ये हाथी जो है वो टुकड़े टुकड़ों में कटेगा। तो अगला पड़ाव 18,150 का, उसमें तो ज्यादा देर बची नहीं है। SGX निफ्टी आज ऑलरेडी 18,350 पे आ गया है और ये फॉल पूरे वर्ल्ड वाइड आज अचानक जोर से एस्केलेट हो गया। तो ये पूरा ग्लोबल पिक्चर जो बन रहा है, मैं आता हूँ उस पर 1 मिनट बाद। तो 18,150 फिर चाहे रैली वापस मार देगा 18,500 तक, मालूम नहीं, या नहीं मारेगा। 18,150 के बाद 17,400 का लेवल है, उसके बाद 16,400 का भी लेवल है, और मेरे को लगता है लास्ट में 15,200 भी टूटेगी। तो ये हर बार होता है, ऑलमोस्ट हर बार, कि बाजार के आने वाले लेवल पहले नजर आने लग जाते हैं और उस वक्त ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा गाली गलौज चालू कर देते हैं, ट्रोलिंग बढ़ जाती है और ये तमाशा जीवन भर चलता है। तो हम्बल सबमिशन है, इंटेलिजेंस के मामले में कम ही लोग अपने से आगे होंगे, और समझदारी इतने साल में ये पाई है कि अक्ल बड़ी या भैंस, इस तरह के सवालों के पीछे अक्ल नहीं लगानी चाहिए। अक्ल हो जाने इनफ नहीं है ना, अक्लमंद लोग भी इस तरह के सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस, समझदार होना। तो जो एक इंसान की जिंदगी में होता है वही पूरे मार्केट के साथ भी होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो सिर्फ इंद्रियों पर आधारित है, जो कुछ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कि सबूत दे दो, भारतीय सेना ने बम गिराए थे, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो ये इट अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट, दिस इज नॉट इंटेलिजेंट। जो कुछ सेंसोरियल इनपुट से ही बेस्ड हो, सिर्फ उसको ही सच मानोगे तो इंद्रियां तो धोखा ही देती हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसमें हमारी बिलीफ्स, ऑब्जर्वेशंस को अटका लेती है। हकीकत में हर इंसान, चाहे उसे आप कितना ही ज्ञान दे दो, कितनी बुद्धिमानी दे दो, सिगरेट की पैकेट पे छपा हुआ है स्मोकिंग किल्स, और वो ज्ञान सबके पास है, जितनी बार सिगरेट की पैकेट उठाएगा उस पर स्मोकिंग किल्स लिखा हुआ है, फिर भी इंसान पीता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहां हमारी इच्छाएं हैं, जहां हमारी कल्पनाएं बैठती हैं, वो पहले से फैसला कर चुकी है हमें करना क्या है। और मैक्सिमम इंटेलिजेंट आदमी जो समझदार अभी तक नहीं बने हैं, जो भी सेंसोरियल इनपुट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, न्यूज आती है, उसमें से सिर्फ कॉन्फर्मेशन को ढूंढते हैं, और अपने मन की जो इच्छा पहले से हो रखी, जो जच रखी है दिल में, हर इंसान अपनी जिंदगी में भी यही करता है, मैक्सिमम लोग, कि जैसे उस बात को, मन की इच्छा को कंफर्म करने वाली कोई चीज संसार में दिख जाएगी, लोग उसका एक इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट बिल्ड करके करते हैं अपनी मनमानी। एंड स्टॉक मार्केट इज द माइंड ऑफ 10 crore people together. The mind of one individual also works in this way only, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियस माइंड को और हमारी सेंसोरियल इनपुट्स को, डेटा को और इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है।
कि जब 15,200 पे मार्केट था और उस टाइम अगर कोई ने दिमाग लगाया कि भैया ये तो 18,000 चला जाएगा, तो उस वक्त भी सेम सवाल, ऐसा कैसे बोल दिया 18,000 हो जाएगा, ऐसा क्या आ जाएगा, संसार में इतनी प्रॉब्लम है, इतना इन्फ्लेशन है। उस टाइम अगर ट्विटर पे चीख चीख के परेशान हो गए थे कि भैया अमेरिका में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन के बावजूद ये डॉलर इतना जो स्ट्रांग होते जा रहा है, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हो रहा है, उस चीज का जवाब कोई ज्ञानी आदमी के पास नहीं था। तो हमने अपने अज्ञान में से उसका आंसर पैदा किया कि वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, और अमेरिका की दादागिरी है कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन के बावजूद डॉलर को मैनिपुलेट करके इनडायरेक्टली अमेरिका से एक्सट्रीम इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जितने लोग अमेरिका के इन्फ्लेशन से डर रहे हैं, एक्चुअली तो आगे चल के इन्फ्लेशन घट जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो घटना शुरू हुआ उसको आप कैसे पकड़ोगे, क्या हो रहा है संसार में वो देखो। रेलिवेंट डेटा को लोग देखेंगे नहीं, कॉन्फर्मेशन, जो डेटा अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कॉन्फर्मेशन देता है वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक नैरेटिव में। तो करेंटली अभी 15,000 से मार्केट का 18,000 आना जस्टिफाइड था क्या? एक ही जस्टिफिकेशन था कि इतना बेच चुके थे बाजार को कि आप किसी को कूटते चले जाओ और वो उसकी टांगे जवाब दे जाए और वो ढेर होके जमीन पे गिर गया, तब उसको तो मारने में बहुत मेहनत होगी और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आप थोड़ी देर रुक जाओ या उसको उठा करके पानी के छींटे मारो और उसकी दोनों टांगों पे उसको खड़ा करो, खड़ा करने के बाद फिर उसके दो थापकी। तो अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली विनिंग कुछ माइंड्स है जिनको आप ऑपरेटर बोलते हो, प्रोफेशनल बोलते हो, प्रोफेशनल वर्सेस पब्लिक अगर है, तो प्रोफेशनल्स ने पब्लिक को 15,000 पे ऑलरेडी इतना पेल दिया था कि पब्लिक के पास और पेलवाने के लिए कुछ नहीं था। तो भैया एक मार्केट की रैली जरूरी थी। दैट्स व्हाट हैपेंस, ओवरसोल्ड मार्केट्स रीबाउंड हाउ, कि बेचते ही जाके प्रोफेशनल्स के पास फायदा नहीं है, जितना भी बेच देंगे नीचे पब्लिक के पास और बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये जो रैली आई, अमेरिका की रैली बहुत फीबल थी, इट कुड नॉट गो बैक टू द ऑल टाइम हाई, बट इंडियन मार्केट रैली वेंट एंड क्रॉस्ड एन ऑल टाइम हाई। So that crossing the all-time high, and still it is a rally and not a bull market move. We maintained that continuously from 15,000 से 18,000, और 18,000 के ऊपर निफ्टी को पकड़ पाना बहुत कठिन था क्योंकि सारे पैटर्न्स इरेगुलर पैटर्न्स थे। तो ज्यादा जानकारी होना भी लाइफ में एक चुनौती बनती है, और ज्यादा जानकारी के जिसको ज्यादा समझ होती है, ज्यादा जानकारी होती है, उसके लिए भी चुनौतियां आएंगी, जिसके पास नहीं है उसके भी पास चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां सबको आएंगी। तो समझदार आदमी वो है कि जब उसके मेथड से उसके माइंड के लिए जो चुनौतीपूर्ण समय बन गया, तो जहां चुनौती निफ्टी में बनाई जा रही थी, निफ्टी से हम साइड हटके कि इंडिविजुअल स्टॉक्स को खेलेंगे दबा के, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, एक बार जब ये नीचे की चाल कंफर्म होगी छोड़ेंगे नहीं फिर निफ्टी को। तो ये फॉल क्यों आएगा, इस तरह का सवाल करने वाले लोगों को खुद एक सवाल करना चाहिए कि पिछली बार 15,200 क्यों गया था। तो बोलेंगे जी इन्फ्लेशन की कंसर्न में गया, इसमें गया, उसमें गया। तो जब पिछली बार हाई पे था 18,000 पे, तो नहीं दिख रहा था कि ये सब कंसर्न्स आएगी, उस टाइम नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा फॉल होने के बाद उसके रीजंस आने शुरू हुए। आप 30 साल के इतिहास को छोड़ दो, पिछले 1 साल की सारी न्यूज हेडलाइंस को निकालो और मार्केट के मूवमेंट के साथ उसको स्टडी करो। तो 19,000 से सोमवार को हो सकता है कि रिबाउंड बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप डाउन होकर के रिबाउंड बन जाएगा। तो ये 1000 पॉइंट तो चने कुरमुरे में निकल गए। फिर मार्केट के गिरने की थ्योरी बनना शुरू होगी जब 17,000 तक आ जाएगा, और 15,000 के भाव पे हर आदमी को एग्जैक्टली पता होगा कि संसार में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, शेयर तो लेने नहीं चाहिए। तो इसलिए शेयर बाजार बार बार सब अक्लमंदों को पूछता है, अक्ल बड़ी की भैंस। ये लॉजिक कुछ जो लगेगी ना, न्यूज फ्लो इज लॉजिक है, न्यूज फ्लो इज अ डिजाइन ऑफ नेचर फॉर रिपोर्ट मैनिपुलेशन। लोगों के रिस्पॉन्स बनेंगे जब तक वो कैलकुलेट होंगे और रिपोर्ट होंगे, उसमें टाइम लगेगा। ये जो फंडामेंटल के नाम पे कुछ भी अफीम चरस बोल रहे हैं लोग, व्हाट इज फंडामेंटल? Everybody is parking their opinion also as fundamental.
अब IBM कंपनी ने जब वर्ल्ड में पहली बार कमर्शियल सेल के लायक कंप्यूटर बनाए, वो पूरी बिल्डिंग के साइज के कंप्यूटर नहीं, कमर्शियल सेल के लायक कि किसी ऑफिस में रख के जो कंप्यूटर पे काम हो सके, तो उस कंप्यूटर की लॉन्च पर IBM के उस समय के जो चेयरमैन थे थॉमस वॉटसन जूनियर, उनकी स्पीच में से एक लाइन मेरे लिए इमोर्टलाइज्ड लाइन है, जो शेयर बाजार के भेद समझने के लिए इस तरह की बहुत सारी रीडिंग्स लाइफ लॉन्ग दिमाग में घुस गई। थॉमस वॉटसन जूनियर, द देन IBM chairman, in his speech at the time of launching the world's first commercial computer sale, had mentioned a line in his speech, there is a market for just about 5 such computers in the whole world. कमर्शियलाइज्ड कंप्यूटिंग के जनक को भरोसा नहीं था कि सारा संसार एक दिन कंप्यूटिंग पे चलेगा। तो जो प्रॉक्सिमिटी बायस होता है, जब हम किसी चीज के बहुत करीब होते हैं तो हम देख नहीं पाते। आंखों को भी देखने के लिए एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस की जरूरत होती है। तकरीबन 1.25 फुट का डिस्टेंस ऑप्टिमल डिस्टेंस है, 15 इंच का। उससे करीब और चीज आती जाएगी तो आपकी विजिबिलिटी, आपकी उसकी वो डिस्टॉर्शन होता जाएगा। आपकी नाक के सामने आप कुछ रख लोगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि ये क्या रखा हुआ है। तो जरूरत से ज्यादा करीब हो जाना चीज के और उसके बाद अपनी सेल्फ क्रिएटेड बायसेस को पुश करना, ये फंडामेंटल एनालिसिस की प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब अपने आप में यूजफुल अप्रोचेस हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने कॉग्निशन को स्टडी नहीं किया। कॉग्निशन इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन अंडरस्टैंड्स और स्टडीज थिंग्स। तो हम समझते कैसे चीजों को, उस चीज को समझे बिना जो सो कॉल्ड समझदार आदमी है, कोई मतलब है क्या 15,000 बोल दिया? भाई तुमने 15,000 भी तो बोला था जब हमने 18,000 बोल दिया। 18 के बाद हमने 19 तक का फैसला किया कि गिलास के अंदर में लास्ट घूंट जो है ना सुड़क सुड़क के नहीं पिएंगे। तो जो बी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर में हमको सुड़कने वाले गिलास नहीं, बहुत लंबी चाल नजर आ रही है, उधर चले जाओ, क्योंकि दिख रहा है अगले 1.5 महीने तक वो लंबी चाल चलेगी। और बड़ी परप्लेक्सिंग सिचुएशन बनी हुई थी कि इतने बड़े बड़े मूव्स ये बी ग्रुप के स्टॉक में दिख रहे हैं और इंडेक्स का ये हाल है। तो भाई इंडेक्स को शादी कर ली है, बीवी है, कि जो समझ में नहीं आती तब भी उसको समझना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इग्नोर कर दो इंडेक्स को। तो अब इंडेक्स में मेरे को सेल वाले धुआंधार पैटर्न्स क्लियरली अब स्टेबलाइज्ड हो गए। फॉर मी एवरी रैली इज गोइंग टू बी अ सेल एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप नाउ। कोई स्टॉप लॉस नहीं। मतलब वो क्या है, एक बार 18,000 दिखा के अगर वापस 19,200 भी जाएगा तो ठीक है। जहां हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा काट देंगे, फिर वेट करेंगे। जिस दिन वापस निफ्टी में सेल आएगा तो बेचेंगे। एट द सेम हैंड ये निफ्टी में इतना बड़ा जो सेल सिग्नल आने के बाद भी कमाल की बात ये है, बहुत बड़ी संख्या में अभी भी बी ग्रुप के ऐसे स्टॉक्स जिनमें सस्टेनेबल अप ट्रेंड्स हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं एक बार में 15,000 का दांव लगा दूं और उस पर साधु होकर बैठ जाऊं नहीं। अभी जब तक ये 18,100 का घर नहीं तोड़ता है, आई कीप अ ट्रेडर्स एटीट्यूड एंड कीप फ्लिपिंग द ट्रेड्स। 18,100 तोड़ने के बाद इसको स्पेकुलेटिव पोजीशन बनाएंगे कि भैया 200-250 पॉइंट की फ्लक्चुएशन में निफ्टी को टच नहीं करना है, तभी हम 2,500 पॉइंट खा पाएंगे। That's what my view is on the long and short end of the things. So whoever feels like discussing things, जिनके भी पास माइक है, you can unmute yourself and go ahead and I need not wait. You do not wait to get invited by me. टर्न बाई टर्न बात करते हैं और जिन्हें माइक चाहिए कृपया मांग लीजिए, मैं आपको माइक से ऐड कर दूंगा। हाँ, मेरी गाड़ी पार्किंग में बेसमेंट में अंदर जा रही है, तो आप लोग आपस में थोड़ा माहौल राजीव जी बताइए। हेलो। हाँ राजीव जी बताइए। नमस्कार सुशील भैया। नमस्कार भैया।